Assalamualaikum ji, welcome to BU TV, and we're here basically today for an exclusive interview with you. You're an alumni of Bahria University, pride of Bahria basically. So how does it feel like to be back, Mr. Raza Sarwar? Assalamualaikum ji, walaikum salam. Allah has been so kind. I'm a proud Bahrian, right? I still think even after getting degrees from other universities that I'm a proud Bahrian because Bahria is in my heart. Because I did my bachelor's degree from Bahria back in 2005. Nice, you go way back with Bahria. Yeah, I did my software engineering from Bahria University in 2005. So I took admission in 2001 basically. At that time, Bahria University was a very small university. We had only old building in Bahria. Yeah. Yep. So how have you seen the transformation over the years in Bahria? I think you've come back after a long time. Yeah, I don't visit Bahria very frequently. Okay. Yeah, because I was busy in my job, then in other my other academics, because I have done 3 masters after graduation from Bahria University. I did one MBA earlier in 2007, then in 2009 I did MS, and recently I did one more MBA from LUMS. So Raza, you're still learning, you're still evolving. Because I believe that you have to upgrade yourself. You can't be, you have to keep yourself updated with the technology, with latest practices. So Raza, you're heading the HR department at PTCL. No, I'm heading talent acquisition department. Talent acquisition because department. PTCL is a huge organization. We have huge HR department. So we have different sub departments in HR. So in my how did you end up there? Software engineering, MBA, quite a mix of a journey. Actually, there was one project in 2007 on which I was assigned from IT department to support HR department. Okay. But my performance was, I think, good in that project. So HR asked me to stay in HR department for some time, because at that time we were implementing SAP in PTCL, right? So HR ने मुझे कहा कि let's play from our side, ठीक है, क्योंकि IT वाले शायद उनको कोई गोली वगैरह करवा देते थे. They thought कि being an IT guy I can support them better. So initially I didn't have any plan to pursue my career in HR. So I thought I will stay for some time period in HR department because I was enjoying there. But with the passage of time, I think it was too late to go back to IT department. But HR kind of gets to you. You kind of sink in. It's a nice place to be also. HR, I believe that from IT you can go to HR, but an HR graduate cannot go to IT department because IT is a bit tricky thing, right? So in 2007 and 8 I was shifted to HR department. So initially for a few years I was working on special projects, on compensation, on some calculations, on system implementations, right, like SAP. Then we have some few built-in in-house dweller systems on which I was working. Then in 2015 my mentor asked me to decide either you want to go back to IT department or you want to pursue your career in HR. So I was also confused, I never thought about it. So that was your deciding phase? Yeah, so he gave me one day to think about it and come back with your final decision. So next day I went to him, I told him that now it is difficult for me to go back to IT department because of 2 things. One, I am enjoying my work in HR department more as compared to IT. Secondly, IT you have to keep yourself updated with latest technology, with latest programming languages. So it was difficult for me to suddenly go back so many years. Go back to 2007 and 8. So if you go down a little memory lane, मतलब बाद में हम लोग पढ़ी लिखी बातें करते हैं. How was your time at Bahria? Heart and soul तो हमारी है Bahria के अंदर. Heart and soul, yeah. But how would you describe it? In 2001 when I got admission in Bahria University, I joined on 10th of August 2001. When you remember the date also? I remember the date as well. So at that time it was a very small university. We had only old building. Right? Yeah, you mentioned. So new campus was constructed in front of us. So इस जो जिस plot के ऊपर new campus है, I remember in 2002 we celebrated Basant festival as well. We used to park our cars, motorbikes. So you were lucky. हमारे time पे तो सारी चीजें बंद हो गई थी. And वो तो गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन थे कि बसंत वगैरह बंद कर दी थी. वो हमारे आने से शायद हुआ. मुझे याद है कि ये पूरा कैंपस हमारे सामने कंस्ट्रक्ट हुआ था. उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में भी गॉट चांस टू कि हमारी क्लासेस यहाँ पे हुई थी एनसी डिपार्टमेंट में. तो हम लास्ट में थे और हमारे टाइम पे यूनिफॉर्म भी होता था. वी यूज्ड टू कम इन. आई डोंट आई कांट से इट्स अ गुड टाइम और बैड टाइम, but we used to come in blue pant and white shirt. So initially when I took admission in Bahria University,
हमें थोड़ा सा था कि वी कुड कम इन जीन्स और ब्लैक पैंट, लेकिन उसके बाद इन 2002 इतनी रिस्ट्रिक्शन हो गई थी कि इट शुड बी एग्जैक्टली नेवी ब्लू पैंट एंड वाइट शर्ट एंड वो थिक शर्ट्स नॉट द थिन Yeah. शर्ट्स एंड ऑल दैट। तो हमने तो वो वाला भी टाइम देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बहरिया का डिसीजन मेरे ख्याल में मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था टू टेक एडमिशन बहरिया। ऑनेस्ट स्पीकिंग आई अप्लाइड इन 3 यूनिवर्सिटीज़। उस वक्त नया नया आईटी का एक बूम आया था, राइट। आई हैड 3 ऑप्शंस कि इधर टू गो टू आर्मी और टू डू CSS और to do this computer science thing, right? So I think it was on the peak in those days, right? Yeah, it was IT's boom because it was 10th of August 2001 और उसके बाद 9 सितंबर 2001 एक महीने के बाद वो इंसिडेंट हुआ था, तो उस वक्त IT पूरे बूम पे थी। So honestly speaking, I applied in 3 universities. I'm not going to take name of other 2 universities. Those were the 3 best universities of Islamabad at least, right? So one university didn't give me admission. I said okay, it's okay. I was on merit list in second university and I was on top of the list in Bahria University. And I don't know why, but my father wanted me to join Bahria University because his colleagues' sons were studying here, I guess. Okay. So I took admission in Bahria in 2001. So I was a very good student. Okay, I ended with my software engineering with more than 3.8 CGPA. I still remember. So you were the studying type. Did you ever go into extracurricular? Yes, I used to play table tennis here a lot. I was one of the student जो टीचर कहते थे कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्लास बिकॉज आई हैव टेबल टेनिस मैच। उस वक्त बेसमेंट के ऊपर टेबल टेनिस के 2 टेबल्स लगे होते थे नीचे जो होती थी फोटोकॉपियों के सामने, बिल्कुल उधर से 2 टेबल्स, क्योंकि उधर उस वक्त कुछ था ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही था। कुछ लोग यहाँ पे बास्केटबॉल खेला करते थे इन फ्रंट ऑफ ये जो लाइब्रेरी पहले होती थी वहाँ पे। अच्छा, और पीछे जहाँ पे अब ये एक्सी कैंपस बने इसके सामने गली सी होती थी जहाँ पे हम कभी-कभी क्रिकेट खेलते थे। ओल्ड कैफे भी था, रज़ा फिर रिमेंबर, बड़े मजे की उसकी चीजें होती थी उस टाइम पे। उसकी मुझे अभी तक याद है कि 35 रुपीस की एक बिरयानी होती थी। चले इतने पुराना तो मुझे भी याद बहुत थोड़े टाइम के लिए आती थी। अच्छा। और ब्रेक में हम जब जाते हमारी कोशिश होती थी कि यार अपनी अपनी एक प्लेट रिजर्व मुझे उसके समोसे वगैरह प्रोबेबली हां याद है कि वो ज़्यादा छोटा सा एक कैफे होता था। इट वाज अ वेरी होमली फीलिंग एट दैट टाइम। नाउ वी हैव ऑब्वियसली ग्रोन। उस वक्त बहरिया के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत कम होते थे। मेन 2 डिपार्टमेंट थे, एक कंप्यूटर साइंस और दूसरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पायनियर्स ये 2 थे ना हमारे यहाँ। जियो साइंसेस एंड में बना था, ठीक है। और उस वक्त हमारा एक मुझे याद है एनुअल डिनर वगैरह अगर कभी हुआ करता तो वी यूज्ड टू गो टू बहरिया कॉलेज। अच्छा। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं था, कुछ ऑडिटोरियम में कभी कुछ हुआ करता था, कभी जिम्नेजियम में भी होते थे। वो आप लोगों के बाद प्रोबेबली फिर हुए थे। जिम्नेजियम में मेरे ख्याल में मेरे बात हुए थे, मुझे नहीं याद कि वो यूज्ड टू गो टू जिम्नेजियम। अच्छा, नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टिल थिंक इट वाज राइट डिसीजन टू टेक एडमिशन बहरिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि आई बिलीव एंड आई टेल माई कोलीग्स वट एवर आई एम टुडे इज़ ड्यू टू बहरिया, ठीक है। नो डाउट आई हैव नाउ रिसेंटली डन माई MBA फ्रॉम लम्स एज वेल, और लम्स का एक अपना वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बट आई स्टिल टेल माई कोलीग्स, माई फैमिली, फ्रेंड्स, foundation stones for Bahria is Raza, you're actually extremely qualified when we particularly talk about only HR. You've done SPHRI, HRMP, you're certified also, so you probably can actually guide the students better, you know, like when you walked out of university and you went into the market initially over the years, what kind of problems did you face, like challenges, problems? And आज के हमारे जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही कहीं और ही पहुंच गए हैं ना, मतलब बहुत केयर फ्री भी हो गए हैं, एंड आप हायरिंग करते हैं टैलेंट एक्विजिशन पर्टिकुलरली, तो वो जो गैप आ रहा है आपको क्या लग रहा है वो क्यों आ रहे हैं? एक्चुअली जो सर्टिफिकेशन मैंने की थी इट वाज इन 2015 exactly when I decided that I want to pursue my career in HR, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक मैं सिर्फ अपनी कॉमन सेंस पे या इधर उधर से देख के चल रहा था HR डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने एग्जैक्टली थ्योरी नहीं पढ़ी हुई थी। सो उस वक्त इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर MBA अगेन इन HR आई थॉट के लेट्स गेट सम HR सर्टिफिकेशन, तो आई वेंट फॉर दिस HR सर्टिफिकेशन, ठीक है। सेकेंडली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम सॉफ्टवेयर कर रहे थे इन 2004-5, तो जब हम ये वैक्यूम टेस्ट कॉम्प्लेक्स या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पास से गुजरते थे तो हमें पता था यार यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनते थे, हम सोचते नहीं थे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनते होंगे। हमारा ख्याल था कि उस वक्त जेट ऑडियो वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे बनते होंगे। तो क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं होता कि जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, तो जब मैं फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप करने गया था 2003 में, तब मुझे पता चला था कि नहीं यार ऐसे नहीं होता जिस तरह से हम बुक्स में देख के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सच है कि जो कुछ आप बुक्स में पढ़ते हो उसका बहुत कम है जो कि एग्जैक्टली आप जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हो। लेट्स से अगर आप मेरी एग्जांपल लें, आई वाज अ वेरी गुड प्रोग्रामर, ठीक है, मैंने प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी की हुई है, प्रोग्रामिंग के जितने ग्रेड्स थे अभी भी
यहाँ पे टीचर है राशिद करीम साहब, ठीक है, उन्होंने हमें प्रोग्रामिंग ज़्यादातर कोर्सेज पढ़ाए थे। तो आई हैड ए ग्रेड थ्रू आउट इन प्रोग्रामिंग कोर्सेज। लॉजिक के जितने कोर्सेज थे, साइमा जवाद टीचर थी मेरी, उन्होंने पढ़ाया था। लेकिन मैं प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से मेरी एक लॉजिक डेवलप हुई है। उसी लॉजिक की बेसिस पे नो डाउट जो मेरा अभी करंट पोर्टफोलियो है, टैलेंट एक्विजिशन है, आउटसोर्स है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ पीटीसीएल के अंदर, वो क्योंकि मेरी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुई है, वो मुझे हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है। तो होता ये है कि काफ़ी सारे हम कोर्सेज लाइक मैंने कैलकुलस पढ़ी थी, इस तरह की अलजेब्रा पढ़ी थी, वो एग्जैक्टली यूज़ नहीं होती, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रही होती है। वो तो मेरे ख्याल पढ़ाई तो कभी भी कम नहीं होती है ना, कहीं से पढ़ाई तो कभी आके भी कम नहीं होती, ऑब्वियसली कभी भी कम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब जो गैप मैं फील करता हूँ उसमें बताऊंगा कि उसको गैप को फिल करने के लिए एज जीएम टैलेंट एक्विजिशन और पीटीसीएल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कौन से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे हैं टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। वो ये होता है कि स्टूडेंट्स टोटली उस बुकिश नॉलेज में होते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास जब कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं उनसे मैं कुछ अगर कहता हूँ कि यार इसको ऐसे करे तो वो हमेशा उन थ्योरीज की फॉर्म में चले, तो प्रैक्टिकल उसका एक्सपेक्ट मिसिंग होता है। दे डोंट नो कि हाउ टू एग्जैक्टली अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। उनका वो जो एक सोल्यूशन निकाल के लेकर आना जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो, वो एक्सपेक्ट मिसिंग होता है। उसके लिए उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो हमें सबको पता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कि आप किसी को भी कहेंगे वो आकर रिक्रूटमेंट शुरू कर देगा, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो एक फिर डिफरेंट स्टोरी है। इसी तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, कोई और चीज़ होगी, ठीक है। उसके लिए मेरी तो सजेशन ये है कि जब भी समर ब्रेक आए, ठीक है, आपको किसी ना किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करनी चाहिए, इधर इट इज़ पेड और अनपेड, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि इट इज़ अनपेड, ठीक है। मुझे ख़ुद मैंने 2003 में जब मेरे 4 सेमेस्टर कंप्लीट हुए थे, हमारे एक टीचर ही थे सीनियर, सईद कादरी साहब, आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उन्होंने मुझे चांस दिया था टू डू इंटर्नशिप विद हिम, ठीक है। उस इंटर्नशिप को मैंने 10 मंथ्स तक कंटिन्यू किया था, जिसकी वजह से नो डाउट मेरे ग्रेड काफ़ी मिस हुए एंड मेरा मेडल नहीं आ सका, लेकिन आई डोंट यानी कि रिग्रेट फॉर दैट, क्योंकि जो मुझे वो एक्सपीरियंस मिल गया था उसका मुझे फ़ायदा हुआ कि आफ्टर सर्विंग दोज 10-11 मंथ्स इन दैट कंपनी व्हेन आई graduated, so I already had 1 year of experience in my resume, so it helped me a lot in my career. तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री के साथ कोई इंटर्नशिप के बहाने या फाइनल प्रोजेक्ट्स के लिए लिंक्ड रहें, ठीक है। तो पीटीसीएल के अंदर मैंने 2-3 प्रोग्राम्स इन 2 सालों में इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। एक तो हमारे इंटर्नशिप चल रही होती हैं थ्रू आउट द ईयर, वो एक अनपेड इंटर्नशिप होती है और वो कोई बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा हमने कोई इतनी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस तरह से दे रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दे कम विद अस, दे ये दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। जैसे आप कह रहे हैं इंटर्नशिप का, वो तो हमारी डिग्री रिक्वायरमेंट्स हैं कि इंटर्नशिप के बगैर तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक तो इंटर्नशिप होती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स ज्वाइन पीटीसीएल, उसमें तो ये ना कि दे नॉट इवन इंटरेस्टेड, वो आते हैं पेपर करते हैं चले और हमने कोई उसका इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं की होती कि हमने एग्जैक्टली इनसे क्या आउटपुट लेना है। पर आपको नहीं लगता वो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी नाइंसाफी है, क्योंकि उस स्कूल में भी अच्छे होंगे। उसके बाद हमने उसी को ठीक करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स किए। एक हमारा प्रोग्राम है, या राइट, ओके, एक हमारा प्रोग्राम है पीटीसीएल एक्सपीरिया, ठीक है। एक्सपीरिया इज़ फ्रॉम एक्सपीरियंस, बेसिकली कीवर्ड है हमारा। इसके अंदर दिस इज़ अ प्रोजेक्ट बेस्ड पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट। ये हर समर के अंदर होता है। वी टेक ऑन बोर्ड ऑलमोस्ट 25 to 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। वी डोंट गो टू tier 2 or tier 3 universities. It's open to all. No, it is not open to all. You choose the universities. We choose the universities. We go to those universities. We conduct some assessments to select the students. Could you shed light on what's the criteria? This year we ran assessment center in 5 top universities of Pakistan, right? उसके अंदर हम ये करते हैं कि एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होता है, ठीक है। फिर हमने एक ग्रुप डिस्कशन रखी होती है, फिर एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। कुछ हमने कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई की हुई हैं फॉर ईच असेसमेंट एक्टिविटी, ठीक है। लेट्स से अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी है तो उसके अंदर हमारी कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं कि वो उसमें टीम वर्क है कि नहीं, उसकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, उसकी बेस कॉम्पिटेंसीज की बेस पे हमारा एक असेसमेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो जो पूरे एक दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपने IQ, जनरल ये जो एनालिटिकल स्किल्स वगैरह आप चेक करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। उस पूरे दिन की बेस पे जो आपकी डिफरेंट असेसमेंट्स होती हैं, फिर एक कॉमुलेटिव स्कोर बनता है,
ठीक। उस स्कोर की बेस पे हम एक एक्सपीरियंस सेलेक्ट करते हैं और वो एक ही दिन पे दे जॉइन अस इन पीटीसीएल। अच्छा, आप उसी दिन कर लेते हैं सिलेक्शन? एक दिन में सिलेक्शन कर लेते हैं उस यूनिवर्सिटी में जाके। ठीक है, ठीक है। लेट्स से कि वी सिलेक्टेड 5 यूनिवर्सिटीज़, तो 5 या 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट किए थे। और बिकॉज पीटीसीएल इज़ बेसिकली अ टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सो हम इंजीनियर्स को भी करते हैं और जो ग्रेजुएट्स बिजनेस के होते हैं उनको भी करते हैं। दोनों हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है। तो उनको फिर हम एक ही दिन ऑनबोर्ड करते हैं इन पीटीसीएल। उससे पहले हमने एक पूरी अपनी वर्किंग की होती है कि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट जाके जिनके साथ उनको हमने जिधर असाइन करना है, जिनके साथ हमने काम करना है, उनसे हमने प्रोजेक्ट्स लिए होते हैं। और ये कितनी ड्यूरेशन का प्रोग्राम होता है? 6 वीक्स, क्योंकि वो समर गैप ही इतना होता है। ठीक है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली ओनली इन द समर्स? इट इज़ ओनली इन समर्स, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज़ का एक गैप होता है और वो है। ये है पीटीसीएल एक्सपीरिया प्रोग्राम। अभी रिसेंटली हमने एक और प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, पीटीसीएल सफ़ीर प्रोग्राम। बेसिकली दैट इज़ अ कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। उसके अंदर आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस एंड प्लस फ्यू अदर स्टूडेंट्स हु आर मोर सोशल इन देयर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वी हैव नॉमिनेटेड देम एज पीटीसीएल सफ़ीर। इस सफ़ीर प्रोग्राम के बेसिकली हमारे 2 डिलीवरेबल्स हैं जो कि मैंने अपनी टीम को या मेरे बॉस ने मुझे एग्जैक्टली सेट किए हुए हैं कि हर यूनिवर्सिटी में वी हैव सिलेक्टेड 15 यूनिवर्सिटीज़ फॉर दिस पीटीसीएल सफ़ीर प्रोग्राम। इन द ट्विन सिटीज और ओवरऑल? ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि पीटीसीएल स्प्रेडेड ओवर ऑल ओवर पाकिस्तान। सो वी हैव यूनिवर्सिटी फ्रॉम बलूचिस्तान, वी हैव यूनिवर्सिटी फ्रॉम Dera Ismail Khan, we have university from complete inclusion, there's no seclusion of any particular area, right? We have selected at least basically PTCL के 16 regions हैं, जैसे सक्खर भी है, हैदराबाद भी है, तो वहाँ की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है कम से कम एक ज़रूर हमने रखी है। बिल्कुल। अच्छा, इसके हमारे जो डिलीवरेबल्स हैं वो 2 हैं। एक तो ये कि जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जनरल मैनेजर्स, EVPs हैं, जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं या बिजनेस साइड के हैं, कमर्शियल के हैं, फाइनेंस के हैं, we have started conducting their sessions in those universities। एक वर्कशॉप होती है तकरीबन 1 घंटे की। उसके अंदर हमारा कहीं भी पर्पज़ नहीं है कि वी हैव टू डू एनी पब्लिसिटी ऑफ पीटीसीएल या जो हमारा HR की कोई पब्लिसिटी करनी है, वो प्योरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दी स्टूडेंट्स है। ठीक है। अब जब एक इंडस्ट्री का सीनियर बंदा जिसका 15-20 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो जब जाके अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि हाउ थिंग्स वर्क इन पीटीसीएल, उससे उनका वो जो गैप है मेरे ख्याल में हम ब्रिज कर सकते हैं कि वो अपने फिर बुकिश नॉलेज को एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर गेटिंग डन इन ऑर्गेनाइजेशंस, उसको लिंक कर सकते हैं। तो आपका शैडोइंग भी चलता है या ये ऑन जॉब काम भी करते हैं प्रॉपर्ली? क्या मतलब? सॉरी। एज इन जो स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर, आर दे ओनली शैडोइंग द पीपल वर्किंग ओवर देयर या आप उनको फुल ऑन एक्सपीरियंस करने देते हैं? फुल एक्सपीरियंस, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है उसके ऑब्वियसली वो असाइन अ सुपरवाइजर टू देम। ठीक है, नेचुरली वी असाइन अ सुपरवाइजर टू देम। ठीक है, लेकिन उसका एक इंडिपेंडेंट एक डिलीवरेबल होता है कि जो विच ही हैज टू। बाकी सफ़ीर प्रोग्राम का जो सेकंड डिलीवरेबल है वो हमारा ये है कि वी हैव टू एंगेज स्टूडेंट्स फॉर देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, हमने कुछ पीटीसीएल के जो रियल टाइम बिजनेस चैलेंजेस हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हमने एक प्रोजेक्ट की शेप दी है और वो प्रोजेक्ट्स हमने असाइन कर दिए हैं टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब उसका ये विन विन है फॉर बोथ पीटीसीएल एंड फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि पीटीसीएल को एक फ्रेश आइडियाज़ स्टूडेंट की तरफ से विच दे हैव रिसेंटली लर्न फ्रॉम बुक्स वो मिल जाते हैं, जो कि वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसकी बेस पे वो अपना फाइनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अ विन। क्योंकि नॉर्मली हमारे टाइम से मुझे याद भी है कि व्हेनेवर वी हैड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स इट वाज डिफिकल्ट टू गो गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब इतनी कोऑपरेशन नहीं होती थी। अब तो इंडस्ट्री थोड़ी सी ओपन भी है। इवन व्हेन आई वाज डूइंग दिस MBA रिसेंटली, आई जस्ट ग्रेजुएटेड इन 2019, तो when I had to select my final year project even after 14 years of experience, I was bit confused कि मैं किस चीज़ पे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करूँ। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो फिर आपकी कोशिश होती है कि फाइनल प्रोजेक्ट जो हो वो एक बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा एक चीज़। सेकेंडली ज़ाहिर है अक्सर रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस की कि वो अपनी किसी इंडस्ट्री किसी कंपनी के साथ करना है। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट जाते हैं जहाँ पे उसका बड़ा भाई या फादर होते हैं कोई, अब सबके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि यार पीटीसीएल के जो हैं जो रियल टाइम हमारे बिजनेस चैलेंजेस हैं, ऑपरेशनल थिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स लें। ठीक है, सुपरविजन हम देंगे, प्लेटफॉर्म हम देंगे।
ठीक है, हम इस तरह से स्पॉन्सर नहीं करते कि लेट्स से अगर कोई किसी का फूड का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें पीटीसीएल करे, क्योंकि इट हैज़ नथिंग टू डू विद आवर बिजनेस। सिर्फ हम अपने जो बिजनेस दैट इज वायबल एंड लिंक्ड टू पीटीसीएल, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बिल्कुल। अच्छा रज़ा, आपके एक्सपीरियंस का, एंड ऑनेस्टली यूर अ सक्सेस फॉर बहरिया यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, अगर मैं कहूँ इतने प्रोग्राम्स आपने लॉन्च किए हैं, आपने हायरिंग की बात की, आपने देखा कि किस तरीके से क्या क्या गैप्स हैं, सब कुछ है, तो आप हायरिंग प्रोसेस में अब जब हमारे बच्चे निकलते हैं बाहर, राइट, सो हाउ कैन यू गाइड देम कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको करनी चाहिए बिसाइड्स इंटर्नशिप्स, या ऐसी क्या चीज़ है, हाउ टू चूज़ द राइट जॉब, probably, you know, let's take it from there. How do you think you can tell them to choose a right job? Unfortunately, right now market is not that good, ठीक है, unfortunately unemployment काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। PTCL को normally whenever we advertise any position we don't face any problem कि हमें position fill करने में कोई issue supply ज़्यादा है ना, ठीक है, supply ज़्यादा है, demand कम है, बिल्कुल। एक कोई assistant manager even manager level की कोई position हम advertise करते हैं, within 2-3 days we get hundreds of CVs, ठीक है, तो it becomes difficult for us to apply some filters, ठीक है। उसमें हमारा ये फिर क्राइटेरिया होता है कि लेट्स से इफ वी हैव एडवर्टाइज्ड अ पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, लेट्स से मैनेजर लेवल, एंड वी आर रिसीविंग 100, 200, 300 CVs व्हिच आर नॉर्मली मोर देन दिस, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी कांट मीट ऑल ऑफ देम, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल सकती, पॉसिबल नहीं है। तो जो पहले कुछ हमारे फिल्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वी डोंट गो नॉर्मली फॉर tier 3 tier 4 यूनिवर्सिटीज, सेकंडली ऑन CGPA, ठीक है, so CGPA does matter still, important है, at least for fresh graduates it is very important, ठीक है। ये रज़ा होती है रिक्वायरमेंट, अब जैसे काफ़ी बच्चे ये कंप्लेन आजकल करते हैं कि जी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट का एक्सपीरियंस तो इंटर्नशिप ही हो सकता है। नहीं, फ्रेश ग्रेजुएट्स का नॉर्मली वी डोंट आस्क फॉर देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, दे वुडंट हैव हैड दैट टाइम और एक्सपीरियंस, ठीक है, दे कांट हैव दैट एक्सपीरियंस। हम जो हमारा फ्रेश, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन मोर प्रोग्राम, हमारा जो मेमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वी कॉल इट PTCL समिट, ठीक है, ये हमने बड़े जानबूझ के ज़रा थिंक थ्रू करके हमने नाम रखे हुए हैं ताकि वी शुड डिफरेंशिएट काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है प्रोग्राम्स। PTCL समिट इज़ आवर मेमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम हर साल तकरीबन 100 मेमेंट ट्रेनीज ऑन बोर्ड करते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, ठीक है। अब लास्ट ईयर आई रिमेंबर कि जब हमने मेमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपने समिट प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो हमारे पास जो जिन लोगों ने रजिस्टर किया था, दोज वर 51,000 स्टूडेंट्स, 51,000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। उसके बाद ज़रा फिर कुछ आप फिल्टर्स लगाते हो, कुछ और तो रेलिवेंट नहीं है, लेट्स अगर किसी ने MA इस्लामियात या MA उर्दू किया हुआ है, वो तो PTCL के अंदर की जॉब नहीं है, तो जब हमने फिल्टर्स लगाए थे तो 27,000 लोग थे जिन्होंने हमारा एक ऑनलाइन गेमिफिकेशन, सारा एक असेसमेंट सेंटर था, उस पर उन्होंने डिजिटल असेसमेंट थी, उस पर उन्होंने असेसमेंट अपनी सेल्फ असेसमेंट की थी, ठीक है, हमारे पास स्कोर्स आए, उसकी बेस पे हमने 1000 जो टॉप के थे उनको फ़िल्टर आउट किया, ठीक। अच्छा, उसके अंदर 3 फ़िल्टर क्राइटेरियाज थे, एक था उनका असेसमेंट का स्कोर, सेकेंडली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, थर्डली GPA। सो जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि GPA डजेंट मैटर, ठीक है, इट डज मैटर, ठीक है। नाउ जिस स्टेज पे मैं हूँ या आप हैं, उस स्टेज पे ऑब्वियसली नो वन इज़ गोइंग टू आस्क रज़ा सर का कितना CGPA था, ठीक है, इट डजंट मैटर, बिकॉज नाउ आफ्टर 13-14 years ऑफ एक्सपीरियंस माई एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड, ठीक है, नॉट माई GPA, बट स्टिल व्हेन आई वाज डूइंग माई MBA, तो कहीं पे मेरे माइंड में था कि मैंने एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाना CGPA, तो वो आपकी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है ना कि भाई आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, बहरिया एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका एक नाम है, ठीक है, नाउ दे हैव गॉट एडमिशन बहरिया, तो पहला फिल्टर तो उन्होंने कर लिया, ठीक है, मे बी उन्होंने प्लेटफॉर्म ही दे दिया बहरिया ने डायरेक्टली, एंड हमारा स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑलरेडी इनको ऑनलाइन रखता है। ऑब्वियसली व्हेन आई एम आस्किंग योर प्लेसमेंट ऑफिस बहरिया का है कि यार मुझे स्टूडेंट्स दो, फ्रेश हैं, तो मैं पहला मैं सिर्फ एक GPA ऐसी चीज़ है जिस पर लगा सकता हूँ यार दे आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो GPA डज मैटर लॉट, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ ज़रा आपकी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आ जाती है, थर्डली आप अपने आप को सेल कैसे करते हो आके, ठीक है, ज़रूरी नहीं है अगर किसी का CGPA अच्छा है, और ख़ासतौर पे जो टेकीज़ होते हैं उनकी केस में कि वो अपने आप को इंटरव्यू के अंदर आके सेल भी अच्छा करते हैं, ठीक है, तो आपको जो अपनी सेलिंग की है जो कॉम्पिटेंस है वो डेवलप करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, जब आप कह रहे हैं सेल करते हैं, सो आर यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इमेज दैट दे गिव यू व्हेन दे वॉक इन फॉर एन इंटरव्यू, और आर यू टॉकिंग अबाउट द कवर लेटर और द रिज्यूमे? आजकल बच्चे काफ़ी
इसके ऊपर नुकसान अपना रखते हैं? नुकसान अपना रखते हैं कि आपने एडोब फोटोशॉप में बहुत अच्छा कलरफुल तस्वीर लगा दी, कलरफुल कर दिया, सारा ऐसा कुछ नहीं है। उसका थोड़ा सा एक आपको जाता ज़रूर है एक इमेज कि नहीं यार उसने अपना सीवी एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बिल्कुल, लेकिन वो इज़ नॉट अ शोर्टी फॉर हिज जॉब। हाँ, स्पेशली व्हेन बिजनेस ग्रेजुएट्स कम टू अस, ठीक है, मैं जब सीवी देखता हूँ अगर वो बहुत पुअरली ड्राफ्टेड है तो मुझे ये होता है कि यार अगर इसको वर्ड के अंदर अपनी सीवी नहीं बनानी आती होती तो उसको क्या आता होगा, इसको कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए। तो उसको हम बिल्कुल एक होता है कि उसको डिस्कार्ड कर देते हैं until अगर हम CGPA ना देखें कि 3.8 और 3.9। बिल्कुल, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन 3.8 तो आजकल बहुत हाई अचीवेबल हो गया है ना। इज देयर एनी मिनिमम क्राइटेरिया? एग्जांपल के कह रहा हूं कि मेरा 3.8 थे, 3.8 सही है, ठीक है, आप अपना मैं ये भी देखता हूं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया होता है हमारा, ठीक है। विदाउट टेकिंग अगेन एनी नेम, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिस पे हम 2.8 पे फिल्टर लगाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हम 3.5 मिनिमम। दीस आर द क्राइटेरियाज यू वर सेइंग, यूनिवर्सिटी नेम, रैंकिंग, क्योंकि मैंने कहा था क्राइटेरिया ज़रा आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पता है कहीं पे स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, कहीं पे नहीं होती। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की एंट्रेंस ही बहुत मुश्किल से है, उनके काफ़ी वो मेरिट हाई होता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे एडमिशन लेना इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। फिर हमें पता होता है क्योंकि ज़ाहिर हमारे पास एक PTCL में काफ़ी बड़ी वर्कफोर्स है, हम हर साल तकरीबन 200-300 करीब रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट चाहिए? आप सीनियर लेवल्स की बात कर रहे हैं या फ्रेश एंट्री? मिक्स, ठीक है। कम से कम जो आउट ऑफ 400 250 तो फ्रेश ही होते हैं, जिनका फ्रेश मतलब नो एक्सपीरियंस और 1 साल तक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। असल में PTCL के अंदर यू नो कि PTCL वाज प्राइवेटाइज्ड इन 2007-8, ठीक है। तो वी कैरी लेगेसी ऑफ मोर देन 70 इयर्स। जब पाकिस्तान बना तब PTCL बना था, ठीक है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी जो हेड काउंट है वो उन लोगों की है विच वर इनहेरिटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उनका एक अपना माइंड सेट है, एक सब कुछ है। तो ज़ाहिर आपको इट बिकम्स समटाइम्स डिफ़िकल्ट कि उनसे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो काम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू इंडक्ट फ्रेश ब्लड, फ्रेश टैलेंट, यंग टैलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ वेरी फ्रीक्वेंटली। तो आउट ऑफ 400 250 300 के करीब जो फ्रेश बच्चे होते हैं वही होते हैं हमारे पास नॉर्मली। उस तरह तो हम काफ़ी देर इसके ऊपर गुफ्तगू करते रह सकते हैं क्योंकि इट नेवर एंड्स एंड व्हेन यू कम बैक टू बहरिया आल्सो ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ इट। सो व्हाट वुड बी योर फाइनल वर्ड्स फॉर बहरियंस इटसेल्फ? क्योंकि हम बहरिया बैठे हुए हैं, दिल जान तो दे देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है बच्चे रोते रहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, क्या होएगा? वो लास्ट 2-3 सेंटेंसेस में अगर आप कह सकें। देखें, अगर नौकरी नहीं है तो इट इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है। आजकल ड्यू टू यानी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, गो फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। जो हमारे के अंदर एक चीज़ मिसिंग है जब हम पढ़ रहे होते हैं, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें नौकरी अच्छी मिल जाए, ठीक है। हम नॉर्मली जो आजकल के बच्चे हम नॉर्मली ये नहीं देखते, सोचते कि ठीक है अगर नौकरी नहीं है तो हम वाई कांट वी बी सोर्स ऑफ जॉब्स फॉर अदर्स, ठीक है। तो हमें सिर्फ जो थ्रू आउट 4 साल या 2 साल जो हम पढ़ते हैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरे ख्याल में हमें पढ़ना इसलिए चाहिए कि वी शुड बी सोर्स फॉर अदर्स टू प्रोड्यूस जॉब्स, ठीक है। हमें स्टार्टअप्स पे काम करना चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा चाहिए कि स्टूडेंट्स के माइंड से थोड़ा सा ये निकालें आहिस्ता आहिस्ता कि भाई जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कुछ ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स करवाएं, कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाएं जिसके अंदर इन स्टूडेंट्स को चांस मिले कि जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उनसे मिले और एक प्रोसेस से गुजारें कि एक स्टार्टअप के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो जॉब इंशाल्लाह मेरा अपना एक बिलीव है कि अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स। लेट मी जस्ट गिव यू एन अपडेट ऑन इट। बहरिया के अंदर एक्चुअली लीडरशिप सेंटर एंड इंक्यूबेशन सेंटर बन गया, तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इट्स जस्ट अबाउट देम अवेलिंग इट। थैंक यू सो मच रज़ा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू जी। you.